Good morning to all. Now we are discussing the flow through pipe part 2 in fluid mechanics. Flow through pipes. The characteristics I have already discussed of flow through pipes, that the basic definitions, and now we are discussing the characteristics and different parameters of flow through pipes. Characteristics of the flow through pipes: energy losses in flow through pipes, major losses such as loss of head due to friction, Darcy-Weisbach formula we have already discussed. Minor losses such as loss of head at entry, changes in diameter, bend, problem on head loss, hydraulic gradient line, HGL, and total energy line, TEL. बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर माइनर लॉसेस कंप्लीट कर लिए थे. इफेक्ट ऑफ एंट्री एट पाइप, चेंज इन डायमीटर, बैंड ऑन HGL, TEL, प्लॉटिंग ऑफ HGL and TEL, design of pipeline for given flow using formula, using nomograms, computation of height of reservoir, compound pipe and equivalent sizes. एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्लो थ्रो पाइप के पार्ट 2 के अंदर laminar flow, where the fluid moves slowly in layer in a pipe without much mixing among the layers, typically occurs when the velocity is low and fluid is very viscous. Turbulent flow, the opposite of the laminar, where considering mixing occurs, velocities are high, and laminar turbulent flow can characterized and quantized using Reynolds number established by Osborne-Reynolds is given by laminar flow, the layer of water flow over one another at different speeds with virtually no mixing between layers. The flow velocity profile for laminar flow in circular pipe is parabolic in shape, with the maximum flow in the center of the pipe and a minimum flow at the pipe wall. The average velocity is approximately one half of the maximum velocity. Turbulent flow, the flow is characterized by the irregular movement of particle of the fluid. The flow velocity profile for a turbulent flow is fairly flat across the center section for a pipe and drops rapidly extremely close to the wall. The average flow velocity is approximately equal to the velocity at the center of the pipe. Viscosity, the viscosity is the property fluid that measures the resistance of fluid to deforming due to a shear force. For most fluid, temperature and viscosity are inversely proportional. We have already discussed from the first PPT and first video what is the viscosity and describe the shear stress and relation between the viscosity coefficient. And an ideal fluid is incompressible and has no viscosity. Density constant होती है incompressible fluid के अंदर. From the diagram we have turbulent flow and laminar flow. Laminar flow में all the streamlines are parallel to each other, and turbulent flow the lines are in a zigzag way, that is laminar flow. In the pipe flow, head losses are major head losses, there are friction losses, and in the analysis of piping system, pressure loss are commonly expressed in terms of
equivalent fluid common height called head loss HL. It also represents the additional height that fluid needs to rise by a pump in order to overcome the frictional losses in the pipe. HL equal to FLB square upon 2GD. Once the pressure loss is available, the required pumping power to overcome the pressure loss is determined from वर्क डन पंप का इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेल्टा पी. V is the volume flow rate and m is the mass flow rate. Mean velocity for laminar flow in a horizontal pipe is P1 minus P2 R square upon 8 mu L. ये हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए यहाँ पर जो हेड लॉस है वो अवेलेबल है. एंड मीन वेलोसिटी जो होगी उसकी वो क्या होगी, डेल्टा पी डी स्क्वायर 32 म्यू एल. फ्रिक्शन फैक्टर मेजर लॉस की हम बात करेंगे. मेजर लॉस के अंदर डिफरेंट माइनर लॉसेस आर कंसिडर्ड इन द लास्ट पीपीटी एंड वी हैव डिस्कस्ड द मेजर लॉसेस ऑफ पाइप फ्लो, laminar flow, turbulent flow, Colre-Brook formula, Modi diagram and Swamy chain. Laminar flow factors में there are different formulas are available. हैगन पॉइसले की हम बात करें तो वेलोसिटी रो जी डी स्क्वायर एच अपॉन 32 म्यू एल, एच एल 32 म्यू एल वी अपॉन रो जी डी स्क्वायर FLV square upon 2GD, and hence we have equal to both value of HF, and then we find out the discharge Q equal to pi d4 pi d raised to power 4 rho g h1 upon 128 mu L. In the turbulent flow, हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप लॉ वन करमान ने जो आपका फॉर्मूला क्रिएट किया है वो ये है कि 1 अपॉन अंडर रूट एफ इक्वल टू 2 लॉग रेनॉल्ड नंबर अंडर रूट एफ, यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर है एफ, अपॉन 2.51 रफ पाइप लॉ 1 अपॉन अंडर रूट एफ 2 लॉग 3.7 डी अपॉन जाए. ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द बोथ and rough pipe law 1 upon under root f minus equal to minus 2 log xi upon d 3.7 plus 2.51 upon Reynolds number under root f. Friction losses in pipe vary with a laminar or turbulent flow. Energy equation can be given as P1 by gamma Z1 V1 square by 2G plus HA minus HR minus HL. There are माइनस वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास लॉसेस की है, जो HR और HL लॉसेस यहाँ पर हमने माइनस किए हुए हैं एनर्जी इक्वेशन के अंदर. ठीक है. और एनर्जी इक्वेशन सेक्शन 1 और 2 के लिए यहाँ पर दी हुई है. सेक्शन 1 के लिए जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड, एंड यहाँ पर वही चीज़ शो कर रखी है. प्रेशर हेड P1 बाई गामा, पोटेंशियल हेड Z1 यहाँ पर दिया हुआ है, और वेलोसिटी हेड V1 स्क्वायर बाई 2G यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ दी हुई है. और सेक्शन 2 के लिए भी तीनों एनर्जी यहाँ पर हम कंबाइंड करें तो प्रेशर हेड वैल्यू, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड इसकी हम बात कर रहे हैं, तो तीनों वैल्यूज है सेकंड सेक्शन के लिए. इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन में एग्जिट कर दिया हमने. फर्स्ट सेक्शन में जो हमारे पास लॉसेस कंसिडर है उसको माइनस कर देंगे एनर्जी इक्वेशन के अंदर, HR माइनस HL, वेयर HA, HR, HL आर द हेड एसोसिएटेड विद द एडिशन एंड रिमूवल एंड द फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप एंड रेस्पेक्टिवली. ठीक है. द हेड लॉस इन पाइप इक्वल टू HL कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डार्सी इक्वेशन फॉर द एनर्जी लॉसेस. जनरल फॉर्म में हम बात करें
तो ये जो वैल्यू है डायरेक्ट इक्वेशन की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इस इक्वेशन के बारे में। फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। Another equation was developed on computer HL under the laminar flow conditions only. HL 32 eta LV upon gamma T square, called the Hagen-Poiseuille equation. If you equate Darcy equation, the Hagen-Poiseuille equation, and then we can find the friction factor. इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन फैक्टर F इक्वल टू 64 ईटा VD रो इक्वल टू 64 अपॉन NR। फ्रिक्शन फैक्टर इज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, बिल्कुल रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है फ्रिक्शन फैक्टर। माइनर लॉसेस के अंदर हम बात करें तो जो इसकी बेसिक लॉस हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और कुछ टर्म्स इसकी यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि माइनर लॉसेस हम कहाँ कहाँ पर निकाल सकते हैं। पाइपिंग सिस्टम इंक्लूड फिटिंग, वॉल्व्स, बैंड्स, एबोस, टीज, इनलेट्स, एग्जिट्स, एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शंस। भाई माइनर लॉसेस जब हम पाइप फिटिंग करते हैं, पाइप के अंदर माइनर लॉसेस हम काउंट करें तो जब हम पाइप फिटिंग करते हैं तो फिटिंग के अंदर लॉसेस होते हैं, फिटिंग को हम कंसिडर करते हैं। वाल्व्स जो होते हैं, बैंड होते हैं, वहाँ भी आपके लॉसेस कंसिडर होंगे। एबोज में होंगे, टीज़ में होंगे, टी सेक्शन जो होते हैं जगह जगह पर पाइप फिटिंग में यूज़ में आते हैं, एबोज, बैंड्स, टीज़। इनलेट पर है, एग्जिट पर है, एनलार्जमेंट, सडन कंट्रैक्शन आ जाता है, कोई पाइप आगे से एक साथ बड़ा कर दिया फिर छोटा कर दिया, तो वहाँ पर जो लॉसेस हैं वो एनलार्जमेंट और कंट्रैक्शन लॉसेस हैं। हाँ, उनकी हम बात करें तो सडन एनलार्जमेंट और सडन कंट्रैक्शन लॉसेस या पाइप फिटिंग लॉसेस के फॉर्मूले की हम बात करें तो डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि सडन एनलार्जमेंट का फॉर्मूला हम बात करें तो हमारे पास जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, वो होगा V1 - V2 अपॉन 2G। एंड सडन कंट्रैक्शन की हम बात करें तो H V² अपॉन 2G इंटू, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम बात करें वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे कि एंट्रेंस पर जो पाइप की हेड की लॉसेस हैं वो होगा 0.5 V² अपॉन 2G। एग्जिट पर जो लॉसेस है V² अपॉन 2G है हेड लॉसेस, और बैंड पर द हेड लॉसेस ड्यू टू बैंड इन पाइप इज K V² अपॉन 2G एंड K इज़ द कोफिशिएंट ऑफ बैंड, डिपेंड करता है आपका बैंड कितना बड़ा है, ठीक है। और हम बात करें कि लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला जो हमारा हेड लॉस का होगा वो क्या होगा, K V² अपॉन 2G। K V यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बैंड हो गया, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट हो जाता है K यहाँ पर, लॉस कोफिशिएंट जिसे हम बोलेंगे। तो इस तरह से एक मेजर जो फॉर्मूला यहाँ निकल के आता है हेड लॉस का वो ये आता है कि KL इज इक्वल टू V² अपॉन 2G। अब यहाँ पर जो KL लॉस कोफिशिएंट है, K क्या है यहाँ पर, लॉस कोफिशिएंट है, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द वाल्व, बैंड, इबोज, टीज, इनलेट, एग्जिट्स, एनलार्जमेंट एंड कंट्रैक्शन लॉसेस। तो उनके कोफिशिएंट्स को ये डिनोट करेगा कहाँ पर हम इसका लगा सकते हैं, ठीक है। These components interrupt for the smooth flow of fluid and cause additional losses because of flow separation and mixing. The minor loss का फॉर्मूला ये हो गया एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, ये भी मैंने आपको पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो माइनर लॉसेस के अंदर मेनली जो फॉर्मूला है HL इक्वल टू KL V² अपॉन 2G यहाँ पर काउंट होता है। माइनर लॉसेस आर जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉस कोफिशिएंट KL एंड जो डिफरेंस है यहाँ पर देखो इस डायग्राम में हम बात करें, दो सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो यहाँ पर हम सेक्शन 1 और 2 को कंसिडर किया हुआ है। ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, सेक्शन 1 पर जो प्रेशर होगा P1 है, सेक्शन 2 पर जो प्रेशर होगा P2 है, एंड चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P2 यहाँ पर काउंट होगा। इस तरह से हम बात करें तो इसका जो कोफिशिएंट है लॉस कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, डेल्टा P अपॉन हाफ रो V²।
डेल्टा पी अपॉन हाफ रो वी स्क्वायर। ये कैसे आया हाफ रो वी स्क्वायर? हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ पर कैसे आया? तो ये डेल्टा जो वी की वैल्यू है ना, तो वी को हाफ तो ये है ही है, और जी जो होता है, जी की जो वैल्यू है वो क्या होता है, इन्वर्सली हो गया। यहाँ पर हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना डेंसिटी के अंदर इस पूरे फार्मूले को। तो डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, ये मास हो गया आपका, यहाँ पर मास कंसिडरेशन हो गया। हाफ एम बी स्क्वायर को हमने यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर कर दिया, हाफ एम बी स्क्वायर अपन 2g होता है। तो के एल जो होगा, जो पहले ही लास्ट फार्मूले में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हेड लॉस है उसकी वैल्यू के वी स्क्वायर अपॉन 2g है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, और जो आपके पास प्रेशर आया है वो है डेल्टा पी। तो कोफिशिएंट ऑफ लॉस यहाँ निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लॉस ऑफ ए कंपोनेंट इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द प्रेशर लॉस is causes and dividing it by the dynamic pressure in the pipe. The total head loss in a system is comprised of major losses in pipe section and minor losses in component. तो मेजर लॉसेस की हम बात करें तो मेजर लॉसेस को हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइप का जो मेजर लॉस होता है वो कौन सा होता है भैया, वो होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। एंड वो मेजर लॉस है, वही फ्रिक्शन लॉस होता है, मेजर लॉस फ्रिक्शन लॉस होता है। और जो माइनर लॉसेस होते हैं पाइप के अंदर वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, एंट्रेंस टू पाइप, एग्जिट ऑफ पाइप, बेंड, फिटिंग एंड टी सेक्शन। हाँ, ये जो लॉसेस हैं वो सब माइनर लॉस के अंदर कंसिडर होते हैं, जिनका एक ही फॉर्मूला, कॉमन फार्मूला निकल के आता है के वी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पर के डिपेंड करता है आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स पर। ओके, तो ये आपका जो टोटल हेड लॉस है वो मैं काउंट करूँ तो मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस ये काउंट हो चुका है। इफ़ द एंटायर पाइप सिस्टम हैज ए कांस्टेंट डायमीटर देन एच एल इक्वल टू एफ एल डी, एफ एल अपॉन डी समेशन ऑफ के। तो इन दोनों में से इस इक्वेशन से हम वी स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास बचती है। तो ये आपका टोटल हेड लॉस निकल के आता है। यहाँ पर अब हम बात करें एक लाइन की कि हमारे पास एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या टोटल एनर्जी लाइन निकल के आती है। उसके बारे में हम बात करें, एक पॉइंट था यहाँ पर, concept of hydraulic gradient line and total energy line is quite useful in the steady flow of fluid in pipe. These pipes, यहाँ पर ये आता है इसकी हम बात करें तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लॉटिंग ऑफ HGL एंड TAL, है ना। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी लाइंस। द टोटल एनर्जी लाइन इट इज नोन एज द टोटल हेड with the respect to any arbitrary datum and is the sum of evolution head, the pressure head and the velocity head. टोटल हेड क्या होगा इसका? टोटल हेड होगा प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड potential head. When the fluid flow along a pipe, there is loss of head and the total energy decreases in the direction of flow. If the total energy at the various point along the axis of pipe is plotted and joined by the line is so obtained is called the energy gradient line. Energy gradient line is also known as total energy line. Total energy line. एंड द सम ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी की हम बात करें तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हेड एंड द प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द piezometric head. If a line is drawn joining the piezometric level at various points, the line so obtained is called hydraulic gradient line. There are some points were noting in the gradient energy lines. The EGL always drop in the direction of flow because of loss of head. HGL may rise or fall depending on the pressure changes. And HGL is always below the energy gradient line and
vertical interrupt two between the two is equal to the velocity head v square upon 2g, and for the pipe of uniform cross section the slope of the hydraulic gradient line is equal to the slope of energy gradient line. There is no relaxation whatever between the slope of energy gradient line and the slope of axis of the pipe. So we are discussed the topic of flow through pipe. So thank you.